Okay, a very good evening to one and all. Hope my screen is visible to everyone and I'm audible to everyone. Please let me know in the chat box so that I can start with the introduction of the program, because we have another session immediately after this for the class. So I will not be eating too much of time. So just let me know whether my screen is visible and I'm audible to everyone. Okay, thank you very much. So a very good evening to one and all, and a very happy Independence Day to everyone who have joined in the session. So myself, Gaurav Sharma, I'm founder of ASS, and along with me, my whole team is there online. So in this program, we will be teaching people for masters entrances, especially in life sciences. So I will be telling you guys what we will cover in this program and how the program will approach. And this program is being co-sponsored by, as you can see on my screen, it is being co-sponsored by Green Skill Solution, which is one of the venture who works in the environment. So we have been funded by Green Skill Solution, right, for the teaching purpose. So we will be taking first 100 people and training them well for the various life science entrances, right? And in this series, ASS Science Foundation, who are a well-known name from last 10 year in the higher exam education, have joined hand with Green Skill Solution, and have been supported by a lot of instructor who are teaching currently in Delhi University. So we have been given supported by them. Uh, so I would like to tell you in brief that what we will be doing in this program. So let me start without wasting any time, because we would be having a session and I don't want to uh, waste too much of time. And let me thank especially Dr. Nitin Chauhan. The sir have actively propagated the program among the various university colleges. Then Dr. Randhir, who is one of the instructor, Tanya ma'am, Anis sir, and Ali sir. Then we will be having few lectures from Dr. Kritika. She is a postdoc in Harvard. Then we will be having Dr. Nikhil Ahuja from Charles University, Prague. Then we will be having Dr. Anu Kala from Charles University, Prague. So these people will be participating in the program in the later on stages. Then we have other instructors which will be talking about specifically with the course. So it is basically a blended program for the MSc entrances, uh, like MSc Biotech, MSc Biochemistry, MSc Life Sciences, MSc Microbiology, MSc Environmental Sciences. Let me name few. So I will be showing you these things. So let me uh, pass to the next stage so that I can show you more. Happy Independent Day, those who have messaged right now. So let me show you what we will be dealing with. So as you can see in my screen, this is the basically the program list. I will be highlighting this list with the help of the cursor. So like we will be dealing with MSc Biotech entrances. Just a minute. So I will be dealing with MSc Biotechnology entrances, then MSc Genetics, MSc Biochemistry, IIT JAM, MSc Genomics, MSc Microbiology, Integrated MSc PhD exams, then MSc Biomedical Sciences. So various branches of the life sciences will be touched in this program, and you will be taught by the expert people. This is the program, and we will be having live interactive classes which will happen after 6 or start at 6 in the evening, because we know that people are involved in their classes and the college level. Then we will be having doubt session on the weekends, and Google Classroom facility, which is one of the very unique facility. All the classes will be given to you. You can listen and prepare. Then the teaching part of this program is free of cost, as we have said that we have been funded for first 100 student for this session by Green Skill Solution. So that will be the motive. Plus you will be guided by experts regarding the various ventures, like what kind of approach you should take, like what kind of training, what kind of dissertation, which institute you should target for your interest, your internship, and in case you want to apply outside India, then how you have to write your GRE, how you have to write your TOEFL, how you have to write your SOP.
So this program will be very comprehensive, and we would like to make sure that everyone who participated should reach in a top class institute either in India or outside India, because many of the people who will be teaching you, they are from outside India also, and within India also from very of the top class institutes. So let's not waste too much of time, because these things you can clarify with me on WhatsApp also. Then if you see, let me go to the, just a second guys. So yeah, so this is one of the main slides which I will be targeting, like which of the institutes which we are targeting here. So you will be targeting all the national level institute which are very good. Like for example, I have given here name the IIT Mumbai or Roorkee. So all the old and new IITs you will be targeting via JAM, and then you will be targeting all the central universities which are there. Then you will be targeting the places like BHU, DU, right, JNU, NCBS, Bangalore, then TIFR, Mumbai, which are the hotspots for biological sciences. Then MKU, which is one of the good center. Then Jamia, etc. So there are a lot of institutes. I will be showing you the list. There are almost more than 50 institutes, but the main targets would be new and old IIT, then TIFR, then NCBS, then IASC, and all the ICERs which have been, yeah, Delhi University also, Delhi University North Campus and South Campus we will be targeting, no doubt about that. Those are one of the targets. But we would like to have that you reach to the top class institute. So the top class starts with IISc Bangalore. If you talk about biological sciences, IISc Bangalore, India, then old and new IIT, then you have ICERs, then you have other university like top 10 university. If you talk about DU, JNU, BHU, and others, I will be showing the list. So don't worry about that. You will be having at least 40-50 places to apply. Central University is one of the hotspots which has emerged recently for being targeted by the student. And time to time, you will be guided that what kind of approach you should take, like what sort of dissertation, what sort of preparation, that how you had to spend the time, right? So these kind of things will be guided well, which are not supported in the college. Like college, you will not be knowing much more about these things. Yeah. So let's talk about the syllabus first, because most of the people have thrown up a query about the syllabus. So let me tell you, we will be covering here 4 parts of the curriculum. Biology, which is major bunch, 60 to 70%, most of the exams you will get the biology, right? In that, we will be having cell biology, biochemistry, molecular genetics, classical genetics, biotechnology, immunology, microbiology, plant physiology, ecology, and animal physiology. So these are the major 10 units which constitute each and every exam, as I have been seeing these exams since 2006, right? So I can tell you better, being a graduate in biomedical sciences, I also know that these are the 10 units around which the most of the examination revolved, and we will be teaching you it in depth, including the JAM point of view. Then the second aspects which come for the chemistry, and this will be taken by most part by Dr. Shravan from DU. So this is the stuff. Like chemistry, you will be having some of the basic of organic chemistry, then the other parts which are there. Then we have these units like 6-7 units of chemistry which will be covered up. So don't worry, this is a bit bland because it have been snipped from the original PDF. So I will be sending you that PDF on the group regarding the syllabus. So let's see the syllabus in detail. So this is something, yeah. Then we will be having one aspect from the physics point of view, which will be taken by Dr. Ali from ISRO, right? He's one of the physicists who is working as a scientist in ISRO. So he have agreed to contribute for physics. So these are the units for physics which will be taken care, and Dr. Ali will take this, right? Then we will be having some part of mathematics, because as far as all of you know that IIT JAM and some of the places like TIFR, IISc Bangalore, NCBS, they ask physics, chemistry, biology, mathematics in equal proportion. So for that point of view, we have to cover the physics, chemistry, and mathematics part also. Regarding the mathematics part, right,
mathematics part, Pratik, Dr. Pratik Priyadarshini from Ranchi will take these things. He has agreed to being contributed on this. So we will be having in mathematics parts these many sections as on your screen. Like you can see, all the sections have been shown here. So this is the syllabus which we will be covering in the upcoming 4 to 6 months, and the program is going to be quite intensive. Though we will make sure the classes are conducted after 6, right? You will be given everything. We just want to make sure that each and every student of this program should reach the best of the institute across India or outside. So this is the only motive, and this is the program is the teaching wise, it is free for initial 100. Yes, there is a like if you procure the material, there will be some charges will be the very minimal charges, not like what are there. And cloud facility, that is one of the paid stuff, because the green skills have not funded for these two aspects. The teaching wise, the teacher have been funded for this aspect, so that is entirely free. Now let's see something more. Yeah, so this was my part. In case anyone having any query, they can quickly put up in the chat box. Your queries will be dealt in chat box, and then I will hand over the stage to Tanya ma'am. She will be delivering the first lecture up to 5, and then Anish Chiller sir. Yes, yes, MSc Geology. See, these all preparations are common, right? You cannot say that MSc Geology, they will not ask you biochemistry or microbiology. When you appear in the entrance, it is a common entrance which is there, right? So it is the common entrance, right? So don't worry about that. I have shown you all the 10 units which will be covered. So MSc Geology entrance will also be having some question from cell biology, some from immunology. You cannot have entire geology or entire botany in that, right? Plant physiology and animal physiology will also be taught there. Anyone having any questions, they can ask. Otherwise, I will leave the floor for Tanya ma'am. See, we will be starting teaching dear, and it will take 4 to 6 months for us to finish the syllabus, right? It's not like the cycle for the examinations have started, right? So 4 to 6 months it will take. So we cannot comment on that, right? It's not like that overnight we can train you within 1 month, everything will be wind up. There is nothing like that. There is nothing like that. Anyone having any specific question? Okay, so if not, first of all, I would like to thank Dr. Nitin Chauhan for his kind cooperation and intensive spread of word among the university student. I would like to thank Dr. Nitin. He is one of my teacher. I worked with him in the IIT Delhi, right, when I was in my MSc first, second semester. So he's intensively teaching in uh, Shraddhanand College right now. He's there. Then Dr. Randhir is there. He's there in KMC. He is also supporting us. Then we have Dr. Neha from IP College. Then we have 6. Yeah, NetJRF also will get a good help from here if you are targeting life science domain or biological science. Even GATE Biotech and Life Sciences will also get a huge benefit from this program, I can assure you, right? And then I would like to thank Dr. Kritika Gupta from Harvard. Then we have Dr. Anusia Banerjee from Oxford. So these two are my batchmate who have agreed to deliver something. Then we have Dr. Nikhil Ahuja from Charles University, Prague, Dr. Anu Kala from the same university, right? So these people will be contributing to the program. And we have other team members like Tanya ma'am from Hamdard. Then we have Anish Chiller from. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. So then we have Anish Chiller from ACBR Biomedical Sciences, and then we have Avneet Kalra from IISER Bhopal, right? Then we have Dr. Satyam Ravi from WITS Bhopal, and Dr. Chinmay Sarkar from Irvine University, USA. See, it's not like yeah.
immediately you cannot be done. So if you invest 4 to 6 months, then it will be really beneficial for you, right? So we are starting here, and 4 to 6 months across the line you will be done with everything. Then it will be a routine cycle, like you can participate in advance for your preparation, right? So with this, I will hand over the stage to Tanya. He will start the lecture, right? Thank you very much for your cooperation all, and I will be there to help you guys 24/7 available on WhatsApp, because I am the main coordinator. Along with that, you can coordinate, you can contact Dr. Nitin Chauhan and all the admins in the group, right? All the admins in the group, like Dr. Randhir, Dr. Neha, Tanya ma'am, Anish, anyone who is the admin, you can contact them, or you can directly reach to me, right? This is my WhatsApp and call number. You can call or WhatsApp me anytime regarding any confusion or any problem during the program, right? So let's hand over the stage to Tanya. She will continue with the class, because already I have taken 20 minutes. Thank you very much, guys. Hope you will enjoy this program. And I am telling you, it's a win-win opportunity. And this is free for the first time, like for this semester only. After that, once the program will be in the advanced stage, next year you might not get this opportunity. So for the first session, you can take full on advantage of this, and the people from the international community and the national community will be guiding you at their best in the life science domain and other domains wherever you wish to do, like the other job sectors and everything. And believe me, the team is really very good. You can have a very good input, and you can reach to your goal as early as possible. So I will be stopping here, and I will hand over my mic to Tanya. She will take over the session. So let me check whether she is there. I guess Tanya is there. Yeah. Yeah, Tanya, I think you can start. I will stop here. You can start your stuff, Tanya. Let me make you the host. A very good evening, everyone. Is my voice audible? Is my voice audible to all? Hello? Is my voice coming? Okay, fine. Okay. So, thank you so much, Gaurav sir. So, we are just going to start with animal physiology. First thing that I want you to understand is that we are not going to teach a separate unit here. If suppose there are some concepts which are need to be dealt in other like other topic, we are going to cover it here only. Like मेरा strategy ऐसा रहेगा कि अगर मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो किसी और यूनिट में आएगी बट अभी पढ़ाना चाहिए, so I will take care of that simultaneously so that कोई concept रह ना जाए. ठीक है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रहना, बिकॉज जब तक आप लोग पूछोगे नहीं क्वेश्चंस, आई वोंट एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको समझ आया है नहीं समझ आया. ठीक है. सो विद दिस ऑल आर रिक्वेस्टेड, यस, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू टेक टू टेक द नोट्स. So I am starting with human physiology, or you can say animal physiology. This is one of the important unit if I talk about zoology exams or any exam, even the life science exam also. We are going to cover all those topics which are important for life science exam also in case of your CSIR net. So we are also going to cover the stuff of CSIR net also. So you are also eligible for that also. So I am going to start with animal physiology right now. Animal physiology में समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एनिमल क्या है, फिजियोलॉजी क्या है. अगर आप लोगों को पता है तो हमारे जो किंगडम्स हैं, देयर आर 5 डिफरेंट किंगडम्स इन दैट आर क्लासिफाइड. कौन कौन से किंगडम्स हैं? फर्स्ट इज कॉल्ड एज मोनेरन, मोनेरा. सेकंड इज कॉल्ड एज प्रोटिस्टा, Protista. Third is called as your fungi.
fourth one would be Plantae, and fifth one would be Animalia. According to Whitaker, R.H. Whitaker system, he has classified kingdoms into 5 different categories. Make me co-host. Yes, sir, I'm making. Just a minute, sir, I'm doing that. Just give me a minute. Sir, I have made you co-host. हो गया ना sir? ठीक है. Okay, so I was telling you that what is animal physiology. So for understanding that what all we are going to study in animal physiology, we should understand what is the meaning of animal and what is the meaning of physiology. So according to R.H. Whitaker system, he has classified all the organisms who are living in this universe, all the organism, every organism, चाहे वो फिश है, चाहे वो ह्यूमंस है, कुछ भी है, प्लांट्स है, फंगाई है, बैक्टीरियाज है, सबको क्लासिफाई करने के लिए he has classified into 5 different kingdoms. First one is Moneran, second is Protista, third is fungi, fourth is Plantae, and fifth is Animalia. So our term animal physiology come from this kingdom. So whatever we are going to study in this unit, that will be dealt with animals only. They are not applicable for all those things are not applicable for Moneran, Protista, fungi. No, they are not applicable. Some things are there which are common in all these kingdoms, but there are some differences also. So we are going to deal with animal physiology, and to be more precise, we are going to study human physiology. Animals में vertebrates, invertebrates, many different classification is there. Invertebrates include your fishes and many different organisms. And humans come under vertebrate, in which we are categorized. We are categorized into human. So more specifically in animal physiology, we are going to talk about humans. This is the meaning of human. Next thing is, अगर मैं थोड़ा सा और इस क्लासिफिकेशन को ब्रॉडन अप करूं, मोनेरेंस में हमारे सारे बैक्टीरियाज आते हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो मोनेरेंस में आते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे प्रोटिस्टा होते हैं, इसमें यीस्ट, सैक्रोमाइसिस, ये सब चीजें आती हैं. फंगाई तो आपको पता ही है, फंगाई क्या होता है, प्लांट भी सबको पता है, जितने भी प्लांट्स होते हैं, एंड एनिमल्स भी ऑल्सो नो. तो अगर मैं इन चीजों को क्लासिफाई करूं 2 चीजों में, तो क्या होगा कि सेल्स जो होते हैं, लाइक मेरा मोनेरन है, अगर मेरे को इनको क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर उन्होंने करा, देयर इज अ यूनिट विच इज कॉल्ड एज सेल. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको जीना है तो उसके पास सेल होना चाहिए. अगर उसके पास सेल नहीं है तो दैट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव. So cell is the basic structure and functional unit of any organism. So according to the cell are of 2 types. One is called as prokaryotic cell and second one is called as a eukaryotic cell. These are 2 different kind of cells. Prokaryotic का meaning क्या होता है? What does prokaryotic mean? Pro means primitive. Pro means primitive. Karyotic is derived from a term which is called as carrion. Now what does carrion stand for? Carrion stands for carrion can stand for nuclei. ठीक है, nuclei होता है. ऐसे ही eukaryotic means nuclei and you means advanced. थोड़ा, it is not primitive, it is advanced. Primitive is something which is very like जो सबसे पुरानी चीजें जैसे एग्जिस्ट करती थी, उसको हम बोलते थे प्रिमिटिव. सो न्यूक्लियाई के बेसिस पर हम सेल को 2 डिफरेंट काइंड में डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोट, सेकंड इज कॉल्ड एज यूकैरियोट. तो अगर मैं सेल की बात करती हूँ, सेल क्या होता है? सेल का पूरी एक यूनिट है सेल साइटोलॉजी, विच वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी हियर. अभी नहीं हम पढ़ेंगे बिकॉज वो सब चीजें वरना ऐसे इंटरमिंगल हो जाएंगी. जस्ट आई एम गिविंग यू ब्रीफ ओवरव्यू व्हाट इज सेल. सेल के अंदर एक बेसिक आउटर लाइनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. इस लाइनिंग के अंदर
वाला जितना भी एरिया होता है, इस लाइनिंग के अंदर जो कुछ भी है उसको हम बोलते हैं उसका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। एंड इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियाई लाई करता है। देयर इज वन न्यूक्लियाई। What is nuclei? Nuclei will be called as a genetic material. अगर मैं एक इंसान हूं, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, मेरे से 2 ऑर्गेनिज्म और बनेंगे, ऐसे प्रोपोगेशन, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए अगर आपको अपना जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कहाँ होता है? वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। सो न्यूक्लिया इज अ स्पेस वेयर देयर इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल उसके न्यूक्लियाई में होता है। अब जेनेटिक मटेरियल के 2 काम होते हैं। एक काम होता है हमारी ग्रोथ कराना। मैं जब पैदा हुआ था या जब मैं पैदा हुई थी तो मैं बहुत छोटी, क्या रिपीट करूं मैं? व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट आशु? आशु, व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट? सेल को रिपीट करूं? व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा ठीक है, न्यूक्लियर, ठीक है। सो सेल क्या था? सेल था बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी को भी सरवाइव करना है उसके अंदर सेल होना चाहिए। सेल किसका बना होता है? सेल का बेसिक एक लेयर होती है बाहर जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर जो कुछ भी होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अंदर एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियाई कैरी योर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल अब करता क्या है? मैं एक जब पैदा हुई तो मैं छोटे साइज की थी। धीरे 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 मेरी बॉडी के अंदर सेल की डिविजन हुई। 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, बहुत सारे सेल्स की मेरी बॉडी बन गई, है ना? यस और नो? जब एक स्पर्म होता है और एक एग होता है, वो फ्यूज करता है तो एक 1 सेल ऑर्गेनिज्म बनता है। 1 सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे। ये प्रोसेस करने के लिए मेरे को जेनेटिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। और वो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे है? वो जेनेटिक मटेरियल है आपके न्यूक्लियाई में। तो आपको ये समझना पड़ेगा जेनेटिक मटेरियल के 2 काम होते हैं। पहला काम होता है सेल को डिवाइड करके अपनी ग्रोथ कराना, छोटे से ऑर्गेनिज्म से बड़ा ऑर्गेनिज्म कराना, वो भी काम जेनेटिक मटेरियल से होता है। और दूसरा काम क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म से 2, लाइक अगर एक मदर और एक फादर हैं, उनका उनका स्पर्म और एग फ्यूज करेगा, उससे एक नया बेबी बॉर्न होगा। सो न्यू लाइफ को जनरेट कराने के लिए भी जेनेटिक मटेरियल चाहिए होता है। So these are the 2 main important purposes of a genetic material. जेनेटिक मटेरियल हमें पता होना चाहिए ना, वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? वो सेल के न्यूक्लियाई के अंदर है। समझ आया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है या किसी को डाउट है? यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है या किसी को कुछ डाउट है? हेलो, क्लियर, ठीक है। सो मेरा जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर हुआ? जेनेटिक मटेरियल हुआ न्यूक्लियाई में। अब जेनेटिक मटेरियल यूजुअली 2 काइंड के होते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वन इज कॉल्ड एज डीएनए एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज आरएनए। ये सब कुछ हम डिटेल में बहुत बाद में पढ़ेंगे, बट अभी बेसिक चीज, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए का होता है। वो कहाँ प्रेजेंट है? वो न्यूक्लियाई में प्रेजेंट है। अब हमें समझ आ गया न्यूक्लियाई क्या है। अगर मेरा न्यूक्लियाई बहुत प्रिमिटिव है, व्हाट डज प्रिमिटिव मीन्स? प्रिमिटिव का मतलब है जेनेटिक मटेरियल बस ऐसे ही यहाँ पड़ा हुआ है, इसके आसपास कोई भी ऐसी बाउंड्री नहीं है जो इसको बाहर से सेपरेट करे। अगर जेनेटिक मटेरियल, हमारा जो न्यूक्लियाई है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, अगर वो ऐसे ही रैंडमली सेल के अंदर पड़ा हुआ है, उसके आसपास कुछ भी लाइनिंग नहीं है, that is called as a primitive nuclei. But when your genetic material is separated from the outside media, ये जो सारा outside media है, when it is separated from the outside media, then it is called as your eukaryotic organism. So the main and the most important difference between prokaryotes and eukaryote is that there is a primitive nuclei in prokaryotes and there is a little bit advanced nuclei in the यूकैरियोट्स। अब प्रिमिटिव क्या है? जिसका न्यूक्लियाई किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मतलब उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, बट दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
Is it clear to everyone? Primitive and prokaryotes and eukaryote. Is it clear to everyone? So this is your one cell. ठीक है, cell हमें समझ आ गया. Cell is of two kind. One is prokaryote and one is eukaryote. अब अगर बहुत सारे सेल पास में होंगे, जुड़े होंगे, अगर बहुत सारे सेल्स पास में आ जाएंगे तो हम उसे बोल देंगे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक सेल है उसको मैं बोलूंगी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड किसी ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा सेल्स है उसे मैं बोलूंगी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्या अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम क्या एक सेल होने से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा? यस, वो सर्वाइव कर पाएगा, बिकॉज हमने पहले ही बोला सेल एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी बेसिक यूनिट है जो अकेले रह सकती है और फंक्शन कर सकती है. हो सकता है बहुत एडवांस चीजें ना कर सकता हो ऑर्गेनिज्म, बट जो उसकी अपनी लिविंग के लिए बेसिक चीजें चाहिए होती हैं वो सब वो कर पाएगा. समझ आया ना कि एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी भी हो सकता है. यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक सेल, मल्टी मतलब एक से ज्यादा सेल. एक सेल को हमने बोला वो एक ऐसी यूनिट है, सबसे ऐसी स्मॉलेस्ट यूनिट है जो अकेले सरवाइव कर सकती है. सो दैट्स व्हाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सरवाइव कर सकते हैं. बोथ यूनिसेलुलर and both multicellular organism can survive. So someone can ask you the question, which is the smallest unit which can function separately or independently, जो अकेले काम कर सकता है? That would be your cell. तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि सेल दो काइंड के हैं, one is prokaryote and one is eukaryote. और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है बट अभी वो हम नहीं पढ़ेंगे. बट बेसिक डिफरेंसेस प्रिमिटिव कैरियन एंड एडवांस्ड कैरियन. और एक चीज और मैं बोलूंगी, छोटे जैसे जो टर्म्स होते हैं, जैसे प्रो का मीनिंग हमेशा प्रिमिटिव रहता है, कैरियन का मतलब हमेशा न्यूक्लियर रहता है. तो ये टर्म्स ना छोटी छोटी चीजें अभी से याद करना शुरू कर दो, सो दैट आगे जितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी आप चीजों को सिर्फ सिंपल सिंपल वर्ड्स के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो. यहाँ तक हमारा हो गया. अब मैंने आपको बोला था कि मेरे पास है मोनेरन, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. इस डायरेक्शन में जाते हुए, आगे की तरफ जाते हुए कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है, ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है ऑलमोस्ट. अच्छा, फिर अब मैंने आपको बोला कि सेल्स दो काइंड के होते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. सो मोनेरन जो है ना, दे आर प्रोकैरियोट्स. Monerans are prokaryotes. ठीक है, and the remaining all the fours are your eukaryote. समझ आया कि हमने बोला, हमने चार चीजों में डिवाइड कर दी, 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, देन हमारा फंगाई हो गया, देन प्लांटी एंड देन एनिमेलिया. ये हमारे 5 डिफरेंट किंगडम्स हैं. इसके अंदर हमारा जो मोनेरा है दैट वुड बी योर प्रोकैरियोट एंड द remaining 4 would be your eukaryotes. नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोट से ठीक है. अब प्रोकैरियोट में बताओ यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है? इट वुड बी यूनिसेलुलर. प्रोकैरियोट एंड यूनिसेलुलर वुड बी योर मोनेरन. नेक्स्ट, प्रोटिस्टा क्या बोला हमने? प्रोटिस्टा है यूकैरियोट, बट इट इज यूकैरियोट, बट इट इज अ यूनिसेलुलर. यूकैरियोट but it's a unicellular organism. So Monera would be prokaryotic unicellular organism and Protista would be eukaryotic unicellular organism. And the remaining three हमने बोला सारे eukaryotes तो हैं, but remaining thing are the multicellular organism. Multicellular organism. समझ आया? Fungi, Plantae, Animalia are eukaryote multicellular organism. Protista is eukaryote unicellular and Monera is your prokaryotic unicellular. Yes, yes. Fungi एक example होता है yeast. Yeast जो होता है ना हमारा, वो हमें confusion रहता है that it's a fungi. No, it's not a fungi. Yeast will come into Protista. So obviously अगर yeast प्रोटिस्टा में है so it's a unicellular organism, it is not a multicellular organism. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि yeast क्या है?
यीस्ट यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, यीस्ट फंगाई में है सो इट्स योर मल्टीसेलुलर। नो, यीस्ट इज अ फंग, मतलब उसमें ना कुछ उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो प्रोटिस्टा के होते हैं, कुछ फंगाई के होते हैं, तो इसलिए हम यीस्ट को प्रोटिस्टा में डालते हैं। सो यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस और नो? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? ओके। अब हमने सेल के बारे में पढ़ लिया। अब सेल के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बट जब बहुत सारी सेल्स एक साथ जुड़ते हैं, जब बहुत सारे सेल्स एक साथ जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं एक टिश्यू। जब बहुत सारे सेल्स एक साथ जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गेन। एंड जब बहुत सारे ऑर्गेन एक साथ जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन्स में आपको पता होगा, स्टमक इज योर ऑर्गेन, small intestine is your organ. There are hell lot of organs in my body. Large intestine is one of the organ. Then your esophagus is one of the organ. ये सारे ऑर्गन्स मिलाकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। बहुत सारी चीजें और भी हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, बहुत सारे और भी ऑर्गेनिज्म है डाइजेस्टिव सिस्टम में, बट बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। बेसिक यूनिट सेल है, cell will combine to make tissue, tissue will combine to make organ, and organs will combine to make organ system. So this is the classification. नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आ सकता है, हमने बोला सेल दो काइंड के होंगे, या तो मल्टी सेलुलर हो सकते हैं या यूनिसेलुलर हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब है कि एक से ज्यादा सेल्स हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, more than or equal to 2 cells are there, तो मैं उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलूंगी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या बोलूंगी? जब सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि मैम टिश्यू में भी तो आपने यही बोला ना, जब बहुत सारे सेल्स ज्वाइन हो रहे हैं तो वो टिश्यू बना रहे हैं। यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चन कि मैम जब बहुत सारे सेल्स आ रहे हैं तभी तो टिश्यू बन रहा है ना, तो टिश्यू और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है ना? ये दिमाग में आपके आ सकता है ना क्वेश्चन कि टिश्यू भी तो बहुत सारे सेल्स हैं एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज, वो भी बहुत सारे सेल्स हैं, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सो एनीवन नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? एनी वन ऑफ यू नो दिस थिंग? यस और नो? टेल मी। क्वेश्चन समझ आया मेरा कि मैं क्या पूछ रही हूँ? अब सोच के बताओ, टिश्यू मैंने बोला बहुत सारे सेल्स हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी तो वही है ना जब बहुत सारे सेल्स हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा टिश्यू और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेम ही है? ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा? पहले मुझे ये चीज बताओ। हेलो हेलो, दोनों सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? फर्स्ट टेल मी दिस। अच्छा नहीं लग रहे, तो हर्ष क्यों नहीं लग रहे? जो बोल रहे हैं नहीं लग रहे, सेम नहीं लग रहे, तो क्या डिफरेंस है? टिश्यू स्पेसिफिक सेल से बनते हैं, अच्छा, और टिश्यू हैज ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल। यस, गुड गुड गुड, ठीक है, चलो मैं बताती हूँ इसके बीच में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? अगर मैं अब आपको बताती हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ टिश्यू, फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। Tissue is a group of cell. No, yes, it seem to be same, but they are not same because there is just a small difference between these two. Tissue is a group of similar cells. Group of similar cells that have a common embryogenic, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एम्ब्रियोजेनिक origin. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो इन चीजों को डिफरेंशिएट करता है। ये उन सेल से बना होता है जिनका ओरिजिन, एम्ब्रियोजेनिक ओरिजिन सेम है। अब एम्ब्रियो पे हम थोड़ा सा एम्ब्रियो को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज योर एम्ब्रियो, देन वी विल कम टू दिस टॉपिक, बिकॉज जब तक हमें वो नहीं पता होगा हम एम्ब्रियोजेनिक नहीं समझ पाएंगे। एक स्पर्म है और एक एग है।
दोनों फ्यूज करते हैं और बना देते हैं एक जाइगोट। What is zygote? If someone will ask you what is zygote, zygote is a single celled organism. Single celled होता है। Zygote is single cell, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम कि मेरा जो स्पर्म है उसका वो हेप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है। सो एनीवन नोज व्हाट इज हेप्लॉइड एंड व्हाट इज डिप्लॉइड? एनीवन नोज दैट व्हाट इज हेप्लॉइड एंड व्हाट इज डिप्लॉइड? देखो क्या होता है, मेरे पास मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं। अगर मैं ह्यूमंस की बात, मैं ह्यूमन की बात करती हूँ। ह्यूमन बींग्स में 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स का मीनिंग होता है, मैंने आपको बोला मेरा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल मेरी बॉडी में, ह्यूमन में डीएनए होता है, और ऑर्गेनिज्म में आरएनए भी होता है, बट मेरे में डीएनए होता है। ये जो डीएनए होता है ना, ये क्रोमोसोम्स का बना होता है। दिस डीएनए इज मेड अप ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अब हमें समझ आए 46 क्रोमोसोम आए कहां से। ये आए, मेरा सेल था, आई हैव अ सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारी बॉडी में? ह्यूमन। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, याद रखना। हमारा डीएनए है, और डीएनए किस फॉर्म में है? क्रोमोसोम की फॉर्म में है हमारी बॉडी में। सो यहां से आए क्रोमोसोम मेरे सेल के अंदर। आई हैव 46 क्रोमोसोम इन माई बॉडी। हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, 46 क्रोमोसोम अरेंज होते हैं पेयर में, पेयर में अरेंज होते हैं, मतलब 23 पेयर्स आई हैव। अगर 46 क्रोमोसोम है तो 46 डिवाइडेड बाय 2, 23 पेयर्स। सो देयर आर टोटल 23 पेयर्स इन माय बॉडी। मेरी बॉडी में 23 पेयर्स है हर सेल के अंदर। 46 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम कहाँ है? डीएनए है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियाई में, न्यूक्लियाई मतलब सेल में। दैट मीन्स हर सेल में, मेरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं सबके अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और वो किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? वो पेयर्स में अरेंज होते हैं। तो हमारी बॉडी में 23 पेयर्स है, ऐसे करके 23 पेयर्स है। जो पहले 22 पेयर्स होते हैं, जो 22 पेयर्स होते हैं, वो हर ऑर्गेनिज्म, हर ह्यूमन बीइंग में सेम होते हैं। दे आर कॉल्ड एज ऑटोजोम्स, दे आर कॉल्ड एज ऑटोजोम्स। एंड जो लास्ट 23rd पेयर होता है वो वेरी करता है बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल। मेल के अंदर जो ये 23rd क्रोमोसोम होता है वो एक्स वाई का बना होता है, मतलब उसके एक क्रोमोसोम एक्स होता है, एक क्रोमोसोम वाई होता है। वेयर एज जो फीमेल का 23rd क्रोमोसोम होता है वो एक्स एक्स का बना होता है, उसका एक क्रोमोसोम एक्स है, दूसरा भी एक्स है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। सो मेरी बॉडी में टोटल 23 क्रोमोसोम्स हैं, एंड सिंस आई एम अ फीमेल तो मेरे पास दोनों एक्स एक्स हैं। मेरे को, मैंने आपको बोला डीएनए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल के दो काम थे, यही बोला था ना मैंने आपको, जेनेटिक मटेरियल के दो काम थे। एक था अपनी ग्रोथ कराना, अपनी खुद की ग्रोथ कराना, और दूसरा था रिप्रोडक्शन करना। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई ग्रोथ ओनली, तो क्या होगा, ये जो एक सेल है वो 2 सेल में बनेगा, 2 4 सेल में बनेंगे, 4 8 सेल में बनेंगे। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, बिकॉज वो सारे सेल्स मेरी ही बॉडी के अंदर रह रहे हैं, तो टेल मी, क्या उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अगर मेरी बॉडी के सारे सेल्स फॉर ग्रोइंग, आई एम ग्रोइंग माई सेल्फ, मैं अपनी ग्रोथ कर रही हूँ, सो मैं एक सेल से दूसरा सेल बनाऊंगी, 2 से फिर 4 बनाऊंगी, 4 से 8 बनाऊंगी, वो सब सेल्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही होने चाहिए। अदरवाइज अगर 23 हो गए तो किसी सेल में 23 क्रोमोसोम है, किसी में 46 है, तो मेरी बॉडी में तो ये सेम ही नहीं रहेगा। सो मेरी बॉडी की जब नॉर्मल ग्रोथ होती है, उसके लिए जब सेल डिवीजन होता है तो 46 क्रोमोसोम के 46 ही बनते हैं हर सेल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन, यू आर डिवाइडिंग द सेल। बट इसके अंदर सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम, सो दिस इज कॉल्ड एज माइटोसिस। माइटोसिस मेरी बॉडी में तब होती है जब मेरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं डिवीजन के बाद। सो अब डिप्लॉइडी क्या था? डिप्लॉइडी ये था कि ये एक पेयर में है, तो I will say it is 2n. It is a diploid cell. I am a diploid cell.
बिकॉज आई एम इन अ पेयर। और मेरी बॉडी में जितने भी सेल्स बन रहे हैं मेरी खुद की ग्रोथ के लिए, उन सबको डिप्लॉयड ही होना पड़ेगा। अदरवाइज कोई सेल डिप्लॉयड कोई सेल हेप्लॉयड, तो मेरा तो सारी बॉडी में ही चेंजेस हो जाएंगे ना, सेल कभी कांस्टेंट तो रहेगा नहीं। सो ये प्रोसेस कैसे होता है? ये होता है माइटोसिस से। सेल डिवीजन दो टाइप की होती है, एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। माइटोसिस क्या करेगी? माइटोसिस मेरी बॉडी की ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करने के लिए वो सेल सारे मेरी बॉडी में रह रहे हैं, तो उनका नंबर क्रोमोसोम का सेम रहना चाहिए। सो दैट्स व्हाई माइटोसिस विल गिव यू 2n था तो 2n ही बनेगा। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां तक सबको क्लियर है? नहीं क्लियर? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट और नॉट? इज इट क्लियर? येस और नो? अब क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्शन जब मैं कर रही हूँ, जब मुझे रिप्रोडक्शन करनी है तो मेरी बॉडी में एग बनेगा, और जो मेल होगा, मेल की बॉडी से स्पर्म आएगा और स्पर्म और एग मिलकर एक जाइगोट बनाएंगे। अब बिकॉज, हाँ मेयोसिस बता रही हूँ, मेयोसिस ही बता रही हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। मैंने अभी बोला माइटोसिस समझ आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन, पहला काम हो गया ग्रोथ करना। जो ग्रोथ करके जो सेल्स बन रहे हैं वो मेरी बॉडी में रह रहे हैं, तो उनका डिप्लॉयड ही सेम, उनका जो नेचर है वो सेम रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन में मेरे पास एक मेल है और एक फीमेल है। मेल एक सेल भेजेगा जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म इज ऑल्सो सेल ओनली। फीमेल का एक सेल होगा जिससे मैं बोलूंगी एग। सिंस बोथ आर सेल, दोनों के दोनों सेल हैं, तो क्या दोनों के अंदर क्रोमोसोम होगा या नहीं होंगे? अगर दोनों के दोनों सेल्स हैं तो क्या दोनों के अंदर क्रोमोसोम होंगे या नहीं होंगे? यस और नो? दोनों के अंदर क्रोमोसोम होंगे। अगर ये सेल माइटोसिस से बना होता तो इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम है, अगर ये सेल माइटोसिस से बना होता। तो जब 46 मिलेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 40, 80, 86, 92 क्रोमोसोम। क्या हुआ? क्या हो गया? नया सेल बन रहा है 92 ऑर्गेनिज्म, 92 क्रोमोसोम का। तो क्या कभी आपका एक कॉमन नेचर एग्जिस्ट कर पाएगा इन्वायरमेंट में? नया ऑर्गेनिज्म आएगा, उसमें और ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो टू बैलेंस दिस थिंग कि हर ह्यूमन बीइंग में 2n ही हेप्लॉइडी ही होनी चाहिए, एक सेकेंड प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में जो डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड मतलब 2n, वो कन्वर्ट हो जाता है हेप्लॉयड में। हेप्लॉयड मतलब n में। इसका मतलब इफ देयर आर 46 क्रोमोसोम इन दिस सेल, सो जब इसमें मियोसिस होगी तो बच जाएंगे 23 क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ। और जब ये 23 क्रोमोसोम ये आए मेल के स्पर्म से, आए 23 क्रोमोसोम, फीमेल का एग आया उससे भी आए 23, दोबारा 23 मिलके बन जाएंगे 46। तो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन हो गई। दिस इज व्हाई मियोसिस अकर्स। बट मियोसिस सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं। नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में सारे सेल डिप्लॉयड होने चाहिए, इसीलिए उसमें माइटोसिस होता है। तो मेरी बॉडी में माइटोसिस भी हो रहा है, मियोसिस भी हो रहा है, बट इट विल डिपेंड अपॉन द लोकेशन। तो जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे स्पर्म और एग बनता है, वहां पर मेरी जब डिवीजन होती है स्पर्म्स और एग बनने के लिए, सिर्फ तभी मेरी बॉडी में मियोसिस होता है, अदरवाइज मेरी बॉडी में हमेशा माइटोसिस होता है। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? So I have understood two different things that DNA के दो functions थे, one is growth and second is reproduction. Growth में mitosis होगा and reproduction में meiosis होगा। यहाँ तक सबको clear है ना? तो मैं अब आपको पढ़ा रही थी sperm, ये मैंने आपको मैं आपको पढ़ा रही थी what is the difference between tissue and cell। तो अब हम टिश्यू और सेल समझने की कोशिश कर रहे थे। तो टिश्यू में मैंने आपको बोला था दैट देयर इज अ एम्ब्रियोजेनिक ऑरिजिन। एम्ब्रियोजेनिक ऑरिजिन समझना पड़ेगा क्या होता है। तो मेरा स्पर्म और एग फ्यूज करके जो एक सिंगल सेल बनता है वो बनता है जाइगोट, उसका नाम होता है जाइगोट। सो स्पर्म और एग शुड बी योर हेप्लॉइड।
अदरवाइज आपकी जो कांस्टेंट है नेचर वो नहीं रहेगा. So if it is a haploid, since it's a haploid, that means it is formed by meiosis. Meiosis से haploid बन गया. अब दोनों haploid मिलके diploid बन गया. अब मुझे इस नंबर को मेंटेन रखना है. अब इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में माइटोसिस शुरू हो जाएगा. ये जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है इसकी बॉडी में माइटोसिस शुरू हो जाएगा. तो अगर कोई आपसे बोलता है जाइगोट क्या है, जाइगोट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. जाइगोट होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. अब एक सेल से बने दो सेल, एक से बना दो, दो से बने चार, चार से बने आठ, आठ से बने 16, ऐसे करके नंबर मेरा इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है. सिंस मेरे को इस नंबर को इंक्रीज कराना है तो इसके लिए दो और टर्म्स आ जाती हैं मेरी एम्ब्रियोजेनिसिटी. एम्ब्रियोजेनिसिटी में दो और टर्म्स आती हैं. नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज मोरुला. नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज मोरुला एंड उसके बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट. मोरुला का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें 8 से 16 सेल्स हैं. यहाँ पे सिंगल सेल था जाइगोट, डिवाइड हुआ, 1 से 2 बने, 2 से 4 इंक्रीज हुआ. जब 8 से 16 सेल्स बन जाते हैं उस स्टेज को मैं बोलती हूँ मोरुला. दैट स्टेज इज कॉल्ड एज मोरुला. उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है. ब्लास्टोसिस्ट कौन सी स्टेज होती है? जब ऑर्गेनिज्म में 50 to 150 सेल्स बन जाते हैं. दैट स्टेज इज कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट. इस स्टेज तक आने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं ऑर्गेनिज्म को ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आने में. 4 to 5 days लगते हैं. सो दिस इज अबाउट ब्लास्टोसिस्ट. यहां तक समझ आया सबको? यहां तक सबको समझ आया? ब्लास्टोसिस्ट तक यहां तक सबको समझ आया? नहीं समझ आया? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? क्लियर. अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? हमें एम्ब्रियोजेनिक ओरिजिन समझने के लिए हमें ब्लास्टोसिस्ट पता होना चाहिए क्या होता है. ब्लास्टोसिस्ट का मीनिंग होता है, ब्लास्टोसिस्ट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स. इसकी एक आउटर लेयर होती है जिसको मैं बोलती हूँ ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट एक आउटर लेयर होती है, ट्रोफोब्लास्ट. इसके अंदर 50 से 150 सेल्स बोले ना हमने होते हैं. 50 to 150 सेल्स होते हैं ऐसे. ये जो सेल्स होते हैं इनको मैं बोलती हूँ इनर सेल मास. इसको मैं बोलती हूँ इनर सेल मास. So my blastocyst is composed of two different things. One is called as trophoblast. Outer lining is called as trophoblast. And inner जो cells होते हैं जो 50 to 150 हैं, they are called as inner cell mass. अब ये जो inner cell mass होते हैं ना, ये 3 kind के cells से बने होते हैं. एक को बोलते हैं ectoderm, सेकेंड होता है एंडोडर्म एंड थर्ड होता है मेसोडर्म. ये हमें समझना है एम्ब्रियोजेनिक ओरिजिन समझने के लिए. व्हाट इज एक्टोडर्म, व्हाट इज एंडो, व्हाट इज मेसोडर्म. 3 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स बनते हैं मेरी एम्ब्रियोजेनिक ओरिजिन में. एम्ब्रियोजेनिक मतलब जब मैं एम्ब्रियो समझाऊंगी क्या होता है, बट उसके लिए एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म 3 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जिससे मेरी पूरी बॉडी बन जाती है. मेरी पूरी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कितने सारे सिस्टम्स हैं. वो पूरी बॉडी इन 3 डिफरेंट सेल्स से बन जाती है आपके. एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है एंडोडर्म और तीसरा होता है मेसोडर्म. सो मैं अगर कॉमन आपको एक एग्जांपल दूं तो मेरा जो नर्वस सिस्टम है और जो मेरी स्किन की लेयरिंग वगैरह होती है, जो आउटर लेयर्स वगैरह हैं, वो सब बनती है एक्टोडर्म से. एंडोडर्म से क्या बनता है मोस्टली, मेसोडर्म से क्या बनता है मोस्टली माय मसल्स वाला एरिया जो होता है, स्केलेटल मसल्स वो सब चीजें बनती है मेसोडर्म से. और एंडोडर्म से जो मेरे रिमेनिंग ऑर्गन्स होते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब ऑर्गन्स बनते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्ब्रियोजेनिक ओरिजिन जो हम यहाँ पढ़ रहे थे? Tissue is a group of cells that is made up of similar cells that have a common embryogenic origin. So अगर ऐसे cells जुड़ के बने हैं जिसमें सारे के सारे एक्टोडर्म्स हैं, अगर ऐसा कोई चीज जुड़ के बनी है, बहुत सारे सेल्स जुड़ के बन गए, यस बन गया. अगर ये सारे के सारे सेल्स एक्टोडर्म है, या सारे के सारे सेल्स मेसोडर्म है, या सारे के सारे सेल्स एंडोडर्म है,
then it is called as a tissue. But when I am saying that multicellular organism, so multicellular organism में बहुत सारे cells हैं. कुछ cells हो सकता है ectoderm हो, कुछ cells हो सकता है endoderm हो, कुछ cells हो सकता है mesoderm हो. So this is a slight difference between tissue and your multicellular organism. Then when the cells are coming together and all the cells are made up of same embryogenic origin, then it is called as a tissue. And if they are of different origin, then it is called as a multicellular organism. Clear? Is it clear till this point? Is it clear till this point? यहाँ तक सब clear है? Yes or no? Is it clear till this point? Yes or no? किसी को भी डाउट है तो पूछ लो. जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे. तो अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो डाउट जो भी है छोटा, ये नहीं सोचना कभी भी कि मेरा डाउट बहुत बेग सा है. ये सोचते रह जाओगे तो कभी चीज समझ ही नहीं पाओगे. अभी पूछ लोगे डाउट, अभी क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम में गलती नहीं करोगे. बट एग्जाम में गलती करोगे तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर तो एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा. क्लियर? ठीक है सर, मैं आगे कंटिन्यू करूं क्या, या अभी क्लास है सेकेंड आई गेस. गौरव सर, गौरव सर, चलो यहाँ तक हमें समझ आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टिश्यूज एंड योर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया. सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा. अभी मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ इस वाली. यस वी कैन एंड अप हियर इन स्टार्ट. ओके ठीक है. सो आई विल एंड अप योर क्लास हियर बिकॉज अनीश सर विल टेक द नेक्स्ट क्लास. आई विल डिस्कस अदर कॉन्सेप्ट्स इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच. सर शुड आई एंड अप द क्लास और इसी को ही कंटिन्यू करना है? मैं एंड कर दूं मीटिंग या इसी को ही कंटिन्यू करना है? एंड. ओके, थैंक यू सो मच.